Good morning, children. Rather, it is good evening, children, because we will be meeting at 4:30. The class will start. So, how are you all? I miss you all. You people are very close to me. I hope you are all fine, taking care of yourself during this lockdown period. Follow the instructions given by Modi ji and take care of yourself and your family. Now let's start our studies, beta. Our chapter, the first chapter again, I'll begin with the planet Earth and the solar system. Here we'll read about the planet. Our Earth is a planet, and what is a planet? I'll explain you later. And the solar system. What is solar system? Also, I'll explain you. But before that, let me tell you something. Here, see, we can see countless glittering tiny objects in the sky at night. Most of this appear twinkling, that they are called stars. You must have seen stars. What are these stars? They are glittering tiny objects in the sky that you see usually in the night. In the daytime, you don't see. Why you don't see in the daytime? Because in the daytime, the sun's light is more than the starlight. So they are invisible in the morning. They are only visible during night. The other glittering objects which do not seem to be twinkling may be planet. There are some more objects in the sky which are not twinkling, so they are planets. During this day we see the sun, which is called star. Sun is a star. It's a big star, huge star. Regarding that, we'll read more later. Let's move on. All the objects in the sky which appear similar to us are heavenly bodies. Whatever you see in the sky, what are they? The sun, the stars, the planets, the moon. The moon is only one. Other objects, they are all heavenly bodies. They are also known as celestial bodies. Regarding this, I have already shown you a video, so we won't go into detail. I want to just tell you, whatever you see the things in the sky, in the sky, they are known as celestial or heavenly bodies. And you would be surprised to know that even our earth on which we live is a celestial body. That I've already told you. What is celestial bodies? Celestial bodies are all the heavenly bodies that you see during in the sky, especially not during night, day or night. Whatever you see in the sky, in the object, they are all celestial bodies. Now the stars and the planets which we see in the sky are very small part of of a play of the vast space. What is the space? Space is a area where all the stars and planets are found. There, that space is limitless, means we can't define that it starts from here to there. There is no limit to the space. So there are billions of celestial bodies spread over the vast space. They are very, very far away from us, hence we cannot see all of them. Because space is a very limitless space, so we can't see all the heavenly bodies around. We can see with the limited eyes whatever is possible. So the vast limitless space, which includes all the celestial bodies, is known as universe. See this, universe. This word universe means a place, a vast limitless space. See here, the vast limitless space which include all celestial bodies. It should have something, na? The space should have something. So what is it? It is the celestial bodies that should be included in it, and that celestial bodies with in the space is known as universe. Okay, beta. Though you won't have any question regarding universe, you won't have anything in the fill in the blanks, but you should know what is universe. ब्रह्मांड. ओके, इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड. ओके, जो ब्रह्मा द्वारा रचा था.
though they are billions of celestial bodies spread in the vast universe. Now we'll read more about now what is this galaxy. But before that, let me see. So this is you have seen this photograph. See, I'll show you in a small. Now this is what galaxy is. Okay, see here. See, though there are billions of celestial bodies spread in the vast universe, they are not uniformly distributed in space. You must have seen one is here, the one of the star is here, the other is there, the other is no proper uniform. They don't move in a line, they don't have a proper particular shape, but they are in universe. So this countless stars in the space form a huge cluster. Cluster means beta a group that is known as cluster. Okay, so one cluster may contain here, sometimes there is a problem using this app, but we have to bear with it. I'm not so used to it, that's why these problems I face. So all the stars in the cluster are the cluster. I've told you what is the meaning of cluster. All the stars in the cluster are held together by mutual gravitational force. So these stars have a gravitational force. See here, this gravitational force is their attraction between them. So this attraction helps them to revolve around the sun. Such a huge star cluster of billions of stars along with giant collection of gases and dust is known as galaxy. So what is galaxy? It is a huge cluster of stars that is a collection of gas and dust. There's only not only stars there, but there is also gas, there's also dust. So this cluster of dust and stars and gases is known as galaxy. So this is how galaxy looks. Okay, giant collection, giant means big, huge, bada, virat. Okay, that's what galaxy is. So this is what the photographs. Now moving on. Now here our earth along with the other planets form solar system. Okay, see, solar system. In this solar system, earth is also one of the planet, and the solar system is located in the outward spiral. That means aura. Spiral means spiral shape of the Milky Way. See, this is a Milky Way. Okay, Milky Way. And Akash Ganga. Milky Way, Milky means whitish color, and galaxy, I told you about the Milky Way galaxy. So the earth in which the space in which in which galaxy our earth is known as Milky Way. यानी कि जिस गैलेक्सी में हमारा अर्थ है, उस गैलेक्सी को हम मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में, और आकाश गंगा बोलते हैं हिंदी में. समझ में आया बच्चों? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ most likely there are billions of other solar system in galaxy. ऐसा नहीं है solar system one ही होते हैं. There's only one galaxy or one solar system. There are billions of galaxies and there are many other solar system. But our solar system in which our earth is there, we'll read about that only, and we'll read about the other things that are related to this earth. Now see here, see, Milky Way galaxy is a faint white band stretching across the sky. Okay, it is a barred spiral galaxy. It contains a bar across its center region and has two major arms. The Orion arm is located between two and major. There's nothing to know about. This is only to have a general knowledge, but you have to only remember that Earth belongs to one galaxy that is known as Milky Way. Okay, let's move on to next thing. See here, as we know there are different types of celestial bodies in the universe. Let's move. So there are so many celestial bodies. So first we start with stars because they are huge in number.
And first thing is that sun itself is a star. So let's start with the stars. Stars are self luminous body. What is this self luminous heavenly body beta? Self means खुद का, luminous means light, खुद की light. जिसके पास खुद की light है उसको बोलते हैं self luminous. For example जुगनू, जुगनू को देखिए आप, उसकी खुद की लाइट होती है. ओके वो किसी से लाइट उधार मांगता नहीं है, वो अपनी लाइट से जलता है. दैट्स वाई जुगनू इज अ सेल्फ लुमिनस बॉडी एज वेल एज स्टार्स आर ऑल्सो सेल्फ लुमिनस हेवनली बॉडी. हेवनली का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो भी आसमान में दिखाई देते हैं वो सब हेवनली या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं. दे आर मेड अप ऑफ ह्यूज हॉट गैसेस. इन स्टार्स में गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस होती हैं. और एक गैस जहाँ होगी, वो भी हॉट गैस जहाँ होगी, वहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, जनरेट्स हीट. ये हीट तो होना ही है, ऑब्वियसली हीट विल बी देयर. एंड हीट होगा तो क्या होगा बेटा, लाइट होगी. लाइट होगी तो वो फैलेगा, रेडिएट इन द स्पेस. सो दैट्स वाई स्टार्स ट्विंकल. इसीलिए स्टार्स चमकते हैं. अब आया समझ में स्टार्स क्यों चमकते हैं रात में. द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस. आज तक स्टार्स को कोई काउंट नहीं कर. दैट्स वाई दे आर नोन एज काउंटलेस. वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम एट अ टाइम. इट हैज़ बीन said that at one time we cannot see more than 6,000 stars. So only 6,000 stars we can see with our eyes. That too for one time. एक ही बार में आप एक बार में 6,000 स्टार्स ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते. दो स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज. दे लुक वेरी स्मॉल. दूर बहुत बड़े होते हैं स्टार्स. दे आर वेरी बिग बट हमसे बहुत दूर होते हैं. दे आर फार 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 अवे फ्रॉम अस. इसीलिए बहुत बहुत दूर होने के कारण वो हमको छोटे दिखते हैं और टिमटिमाते हुए छोटे से बिंदु दिखाई देते हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज इज़ यूजुअली मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर. पता है आपको, एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, तो ये स्टार के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं लाइट ईयर. सी दिस इज़ वन स्टार एंड दिस इज़ वन स्टार. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार को हम किलोमीटर वगैरह, जैसे हम किलोमीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं, तो यहाँ पे उसी नाप को बोलते हैं लाइट ईयर. ओके, अंडरस्टूड बेटा. एंड आई हैव शोन यू द वीडियो रिगार्डिंग दिस अर्लियर. Some stars are so far that the light radiated by them reaches us in millions of years. कुछ stars तो इतने दूर हैं हमसे, they are so far that it takes millions of years to reach the light. Light हमको दूर दूर तक आने में बहुत समय लगता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता. मतलब बहुत कम टिमटिमाते वो तारे. The nearest star of the earth other than the sun is Proxima Centauri. हमारा एक सन जो सबसे बड़ा है वो है सन. दूसरा सन का पड़ोसी है जो दूसरा सन है, दैट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमा सेंचुरी. इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा कि मौसी माँ जैसी होती है, इसीलिए मौसीमा. तो मैंने इसको ऐसे याद करना सिखाया बच्चों को कि मौसीमा जैसे बोलते हैं वैसे इसको बोलते प्रॉक्सिमा. और जैसे तेंदुलकर सेंचुरी लगाता है वैसे इसका नाम सेंचुरी भी है. ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हैं. और हमारे सन के अलावा दूसरा सन जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ओके बेटा, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. और ये भी लाइट ईयर में मेज़र किया हुआ है. दैट इज़ 4.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम हम. 4.5 लाइट ईयर्स हमारे से दूर है. दैट्स व्हाट द सन. एंड डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस लाइट एंड to blend slightly. As a result, some of the light reaches directly or some gets slightly bent away. That this makes a star twinkle.
ट्विंकलिंग जो होती है बेटा, उसके बीच में हवा, स्पेस, लाइट, डस्ट सब आता है। तो स्टार्स का चमकना ये सब डिपेंड करता है उसके बीच में आने वाली गतिविधियों से। ओके, एंड लाइट ईयर, व्हाट इज़ लाइट ईयर? मैंने बता दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज लाइट ईयर। अ लाइट ईयर इज़ अ स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है बेटा? सो द स्पीड इज़ 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, not a no, means not a small one, it is 3 lakhs kilometer per second. See here, 3 lakhs kilo. The distance covered by a ray of light is known, for a year is known as a light year. अब आप ये भी लिख सकते हैं, the distance covered by a ray of light in a year or 365 days is called a light year. ओके, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन किसको बोलते हैं बेटा? आपको मैं पहले ही वीडियो भेज चुकी हूँ इसके बारे में। सो इफ़ यू ऑब्जर्व द सन इन द क्लियर स्काई, दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे, अगर आप स्काई को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ये जो आप देख रहे हैं, सो यहाँ पे देखिए पैटर्न बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक ये ऐसा ऐसा ये एक पैटर्न सा बना हुआ है ना। इस तरह के पैटर्न्स आपको बहुत सारे दिखाई देंगे स्काई में। सो ऐसे ही पैटर्न्स को बोलते हैं क्या? कॉन्स्टलेशन। ओके, सी हियर, देखो, डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ बेटा, सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में। तो सनसेट होता है वेस्ट में। तो अर्थ जो है आपको वेस्ट टू ईस्ट घूमते हुए घूमता है। ओके, सुनिए, फिर से सुनिए ध्यान से। सनराइज होता है ईस्ट में, ओके, और सनसेट होता है वेस्ट में। लेकिन अर्थ स्टार्ट करता है अपनी घूमने के स्टाइल कहाँ से? वेस्ट से, उल्टा, सन का उल्टा। सनराइज होता है ईस्ट में, सन का उल्टा वेस्ट में धरती घूमती है। सो धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसीलिए यहाँ पे जो हमको सन, जो भी हमको ये जो दिखाई देते हैं ना बेटा, ये देखिए वेस्ट टू ईस्ट आपको दिखाई देगा, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, एंड द फॉर्मेशन में रिजम्बल एनिमल। जब भी आप इस टाइप से कभी कुछ देखोगे तो आपको कभी एनिमल दिखेगा, कभी ह्यूमन फिगर दिखेगा। इस तरह से आपको कोई शेप्स दिखेंगे, कोई काइट का शेप है, कोई चीज़ों का शेप है। सो दिस ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट इज़ नोन एज कॉन्स्टलेशन। ओके, इसमें कॉन्स्टलेशन में एक उर्सा मेजर है जिसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं, क्लास 5 में आपने पढ़ा था, यू हैव रेड अबाउट इट, एंड इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सेवरल स्टार. It appears in the northern sky in the earth. It is called सप्तऋषि मंडल. आपको एक सप्तऋषि मंडल भी दिखाएगा जो कि ग्रेट बियर का पार्ट है. There are several other formation of stars which have been given names by astronomers. Astronomers you know बेटा, जो इन स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, दे आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स. जो हमको स्टार्स की गतिविधियों के बारे में बताते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्रों को भी एस्ट्रोनॉमर्स ही बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टार्स से देख के बोलते हैं ना, ग्रह मंगल सन 8वें ग्रह में है, शनि 7वें ग्रह में है, अभी आप पे विपदा आने वाली है. ये सारी जो पोजिशंस देख के अपनी हालत बताते हैं, दे आर known as astronomers. The two brightest stars at the end of the सप्तऋषि मंडल, they are called pointers. यहाँ पे देखिए फोटो में ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये सप्तऋषि मंडल के 2 स्टार्स ऐसे होते हैं. इस टाइप से यहाँ पे आपको 2 स्टार दिखाई देंगे. इसमें इतना क्लियर नहीं है बेटा. सो पॉइंटर्स होते हैं. सो दिस पॉइंटर्स में सप्तऋषि मंडल में एक है पोल स्टार, सप्तऋषि मंडल का ध्रुव तारा, जिसके बारे में ध्रुव तारा की स्टोरी आप नेट से निकाल के पढ़ लीजिए कि ध्रुव तारा नाम क्यों रखा गया है.
एंड वो प्रहलाद की स्टोरी के बारे में है। नहीं, प्रहलाद नहीं है बेटा, मेरे को ठीक से याद नहीं है, आप देख लेना नेट पे। एंड इट इज़ ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन। पता है आपको, मैंने क्लास 3 से पढ़ाया था कि ध्रुव स्टार सोज नॉर्थ डायरेक्शन या पोल स्टार सोज नॉर्थ डायरेक्शन। पुराने ज़माने में जैसे सेलर्स को रात को समझ में नहीं आता किस डायरेक्शन में शिप्स को घुमाएं, तो वो लोग ध्रुव तारे को फॉलो करते थे। दैट्स वाई द स्टार इज़ नोन एज नॉर्थ स्टार। ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन। Indians and Greeks have been studying shapes and patterns of the stars since ancient times. हम लोग तो पूर्व ज़माने से ही हमारे इंडिया में स्टार्स की बहुत ध्यान से पढ़ाई होती थी। और मैंने अभी अभी बताया साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स भी पढ़ते हैं लार्ज ह्यूज टेलीस्कोप्स की मदद से। ओके, ये जो टेलीस्कोप्स होते हैं बेटा, इनकी मदद से हम लोग स्टार्स की गतिविधियों को बहुत बारीकी से पढ़ लेते हैं। नाउ कम्स टू सोलार सिस्टम। अब ये सोलार सिस्टम देखिए, इंडिया हमारे अर्थ का मेन पार्ट है कि अर्थ कैसे, अब अर्थ कैसे जन्म हुआ, मैं आज आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे इतना सारा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, बस कुछ बातें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा आ जाएगा तो मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं पूरा पैराग्राफ ना पढ़ के उसको स्टोरी बता देती हूँ। सो पहले बेटा, बहुत कई साल पहले, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, देखिए अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब उस समय की बात है, एक बहुत बड़ा जाइंट मतलब ह्यूज स्टार था। एक ह्यूज क्लस्टर डस्ट का एक क्लाउड था। ओके, सी हियर, ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला। एक ह्यूज क्लाउड था, बड़ा सा एक बादल था जिसमें डस्ट था, गैसेस थे, और उस क्लाउड का नाम क्या था? नेबुला। हाँ, और वो क्या हुआ, वो ना ठंडा हो गया। जब उसके हॉट गैसेस जो थे, इट कूल्ड एंड गेन्ड वेरिएंट। जब वो ठंडा हो गया तो वो बहुत ज़ोर से रोटेट करने लगा। जब बहुत ज़ोर से रोटेट करने लगा, आपने कभी देखा है कि बॉटल को आप ज़ोर से रोटेट करते हो तो क्या होता है बेटा? वो धीरे होके अचानक से किसी चीज़ से टकरा के टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वैसे ही ये नेबुला का टुकड़े टुकड़े हो गए। फास्ट रोटेट किया और उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गए। वो टुकड़े 8 टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में बट गए। जो सबसे बड़ा टुकड़ा था बेटा, वो सन बन गया, और उससे जो 8 टुकड़े बचे वो बन गए प्लैनेट्स। और उससे जो बारीक बारीक थोड़े बड़े टुकड़े जो प्लैनेट्स से थोड़े छोटे जो टुकड़े थे, उनको बोलते हैं मीटरॉइड्स। और उससे जो बारीक बारीक टुकड़े थे ना बेटा, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, जिसके बारे में मैं और बाद में बताऊंगी। पहले इसके बारे में बता देती हूँ। तो इस तरह से एक नेबुला नाम का एक जाइंट विशाल बादल था। वो बहुत ज़ोर से रोटेट होते होते धीरे से एक दिन क्या बन गया, उसके टुकड़े हो गए। टुकड़े होने में से सन बना और 8 प्लैनेट्स बने। और इस 8 प्लैनेट्स से ये देखिए इस तरह का एक बड़ा सा ये नेबुला था, और इसके टुकड़े हुए, और देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये सारे ये बन गए, और उसके बाद ये बने। इट इज़ बिलीव दैट द satellites formed when small balls of gases separated from the central mass and attracted from the better companion planet that became to revolve around the planet। और कुछ उनमें से और जो सेंट्रल मास के टुकड़े बचे थे, वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने लग गए। और जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं ना बेटा, उनको सैटेलाइट बोलते हैं। अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। सो डू यू नो व्हाट इज़ डू यू नो द वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया? प्लैनेट इज़ अ ग्रीक वर्ड which means palans, which means wanderer मतलब जो हम वंडर कर सकते हैं, जो हम दिमाग लगा सकते हैं या
कर सकते हैं. द वर्ड सैटेलाइट इज derived फ्रॉम द ग्रीक लैटिन वर्ड दैट इज़ व्हाट सैटेलाइट विच मीन्स एन अटेंडेंट, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है इसलिए उसको अटेंडेंट बोलते हैं, यानी कि ध्यान रखने वाला. एंड द वर्ड सोलार मीन्स सन, यानी कि सन जो होती है उसमें खुद की लाइट होती है, इसीलिए उसको सोलार बोलते हैं. अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे. द सन इज़ अ स्टार. ये सबसे पहले मैं आपको कब से बोलते आ रही हूँ कि सन इज़ अ स्टार. अ सन डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस. इट इज़ बिल्ट ऑफ गैसेस हेल्ड टुगेदर. ये देखिए इसमें कुछ सॉलिड नहीं है, सिर्फ वो गैसेस से बना हुआ है और सारी गैसेस मिलाने के बाद सन बनता है. ओके, सो सन हैज़ इट्स ओन ग्रेविटी. इसकी खुद की ग्रेविटी है, वो अपने आप ही रहता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता. और मैंने हमेशा आपको बताया है जो चीज़ सन जो रेडिएट करेगा वो हमेशा हीट एंड लाइट देगा. देखिए हीट एंड लाइट, ये देखिए हीट एंड लाइट. और सन और रोटेट्स इनटू स्पेस. The sun does not have any rings. It is the center of solar system and it would be possible on earth without the intense heat. सन की जो हीट है, सन एनर्जी से हमारे पेड़ खाना बना के देते फोटोसिंथेसिस मेथड से. दैट्स वाई वी आर एबल टू सर्वाइव ऑन द प्लैनेट अर्थ. सन इज़ अ वेरी ह्यूज मास, मच बिगर देन द कंपेनियंस. मैंने आपको बताया था नेबुला का सबसे बड़ा पार्ट सन बन गया था. सो इट इज़ अबाउट 1.3 मिलियन बिगर देन द अर्थ. ओके, 1.3 million times bigger than the earth. Due to the sun's huge size, all the members of the solar system are held by gravitational pull and they revolve around it in its respective orbit. सबका एक orbit होता है. Orbit means a circle. Orbit means ऐसे, ये देखिए ऐसे से सन के चारों तरफ घूमते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाट ऑर्बिट इज़. और आपको पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ 150 million kilometer. It is nearer star to the earth is compared to the sun. The rays of the sun reach the earth in 8 minutes. आपको पता है सनलाइट को धरती पे आने के लिए 8 मिनट लगते हैं. 8 मिनट में हमारी धरती पे सन की रोशनी पहुंचती है. इतना दूर है सन हमसे. ओके, नाउ कम्स टू प्लैनेट. बेटा मैं ना उससे पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ. देखिए मैं हमेशा ये एक फॉर्मूला बनाती हूँ जो हर बार क्लास में बताती हूँ, तो वो ऐसे ही समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ. बुक में नहीं है लेकिन उससे समझ में बहुत अच्छे से आता है. देखिए एक थाली होती है ऐसे हमारे घर में, उसमें सब्जियाँ होती हैं कि नहीं. भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, रोटी, पापड़, अचार, चटनी, फिर थोड़ा सा चावल, फिर रोटी, फिर पापड़, चटनी सब होता है ना. तो पूरी एक थाली होती है, तो ये कंप्लीट. उसी तरह मैं इसको बोलती हूँ ये पूरा एक कंप्लीट सोलार सिस्टम है. ओके, सब्जियाँ हमारी प्लैनेट्स हैं और चावल हमारा सन है, पापड़ हमारा मून है और रोटी हमारा सैटेलाइट है और चटनी हमारा एस्ट्रॉयड है और अचार हमारा क्या है, मीट्रॉइड्स. इस तरह से एक थाली हमारी पूरी कंप्लीट सोलार सिस्टम बन सकती है. समझ में आया. कभी कभी हम लोग आपस में बोल सकते आज मैं भिंडी प्लैनेट टिफ़िन में लाया हूँ, आज मैं आलू प्लैनेट टिफ़िन में लाया हूँ, आज मेरी मम्मी ने सिर्फ अचार यानी कि मीट्रॉइड्स दिया है टिफ़िन में. इस तरह से भी आप बात करके इस चैप्टर को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Planets are the heavenly bodies which receive light and heat from sun. सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा what are planets, तो आपको planets जब बोलते हैं तो आपको heavenly bodies बोलना ज़रूरी होता है. ओके आप ये वर्ड बोलेंगे planets are heavenly bodies. सबसे पहले आपको बोलना है planets are heavenly bodies. अब heavenly bodies है तो क्या करते हैं, उनको हीट एंड लाइट सन देता है. बस ये दो ही बातें बोली. व्हाट आर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज एंड व्हाट दे डू, व्हाट इज़ ए वर्क, उनका काम है कि सन से हीट एंड लाइट लेकर बस अपना काम चलाना. ये है स्टार प्लैनेट्स का काम. सो इस तरह से दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. उनके पास खुद की तो लाइट होती नहीं. द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर 8 इन ऑर्डर of their size, distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. अच्छा देखिए, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स तो याद हो जाता है. मैं जब छोटी थी तो मेरे को याद नहीं होता था कि पहले सैटर्न आएगा कि पहले नेपच्यून आएगा. तो मैंने उसका फॉर्मूला बनाया. क्या बेटा, कि देखिए इधर देखिए, यस कहाँ गया, हाँ यहाँ पे सैटर्न, एक मिनट, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर. हाँ ये देखिए, सी है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि SUN, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. फॉर्मूला याद हो गया. मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर तो अपने आप याद हो जाता है. अब कन्फ्यूज़न होता है कि सैटर्न पहले आएगा कि नेपच्यून पहले आएगा कि यूरेनस पहले आएगा. तो हम उसके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला बना दिया है SUN यानी कि सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. इस तरह से आप याद कर सकते हैं अपना 8 प्लैनेट्स. ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट. नाउ सम ड्वार्फ प्लैनेट्स भी होते हैं और सम जाइंट प्लैनेट्स भी होते हैं. ड्वार्फ मीन्स छोटे एंड जाइंट मीन्स ह्यूज. ओके, तो यहाँ पे देयर आर फर्स्ट 4 प्लैनेट्स in the order of their distance from the sun: Mercury, Venus, Earth and Mars. They are called terrestrial planets. इनको terrestrial planets बोलते हैं. किसको, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये फटाफट याद हो जाते हैं, इसलिए इनको terrestrial planets बोलते हैं. इसलिए नहीं, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि इस मतलब याद करने के लिए कि इनको याद करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. बिकॉज दे हैव सॉलिड, टेरेस्ट्रियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास, टेरेस्ट्रियल मतलब उनके पास सॉलिड रॉक की ज़मीन है. ठीक है, ऐसे ही two of the other planets, Jupiter and Saturn, are gas giants. ये गैस के बने हुए हैं, ओनली टोटल गैस. इसीलिए ये देखिए गैस के. पता है आपको, ये दोनों क्वेश्चन KBC में आए थे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं और ये क्या बोलते हैं इसको, गैस प्लैनेट्स कौन से हैं. ये KBC में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था. वेरएस द मोर डिस्टेंस आर यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इनको बेटा एक और बात बताओ, ये आइस जाइंट्स बोलते हैं. ये बड़े बड़े आइस के बने हुए प्लैनेट्स हैं, इसलिए इनको आइस जाइंट्स बोलते हैं. ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था KBC में, शायद नेक्स्ट टाइम पूछ ले बेटा. आप अभी से ही इस चीज़ को ध्यान रखें. ओके, नाउ फर्स्ट, मरकुरी हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर. अब इस मरकुरी, सबसे पहले सी दिस is Mercury. So what is Mercury? Has a thin atmosphere, बहुत पतला सा एटमॉस्फेयर है. and the days are hot but not at night. Temperature drops 100 of degree below freezing point. बहुत कम हो जाता है, जबकि सन के पास है लेकिन रात को इसका टेम्परेचर कम हो जाता है. क्यों, क्योंकि इसके पास थिन एटमॉस्फेयर है, बहुत बारीक एटमॉस्फेयर है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. अच्छा, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ है. ओके, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम
एंड वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों बोलते हैं, वाई डू वी कॉल वीनस अ हॉटेस्ट प्लैनेट। सो बेटा फॉर द सी आई टेल यू द नेक्स्ट लाइन, वीनस ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड थिक एटमोसफियर। ये दो बातों का याद रखना है, वीनस में वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एंड थिक एटमोसफियर, यानी कि उसका जो एटमोसफियर है बहुत गहरा होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है। वॉल्केनिक मतलब वहाँ पे वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं, इसीलिए बहुत हॉट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट नॉट हॉट, बहुत हॉट प्लैनेट माना जाता है। ये देखिए वीनस, आप देखिए रेड कलर का, ये ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है, मार्स इज़ रेड, इसीलिए रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को। एंड अर्थ इज़ ब्लू प्लैनेट। ओके, यस बेटा, and so it is spins backward. Earth, our home planet, is the only planet which support life due to maximum amount of optimum, not maximum, यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट। ये ऑप्टिमम मतलब यानी कि धरती का टेम्परेचर इतना बेस्ट है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि इतनी गर्मी है कि इसमें जीव जंतु पनप सकते हैं। द बेस्ट वे टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, अर्थ इज़ द बेस्ट प्लेस। एंड यहाँ पे हीट एंड लाइट की अर्थ की बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन है, सो दैट्स वाई वी नो अर्थ इज़ अ बेस्ट प्लैनेट। मार्स इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। मैंने अभी आपको बताया कि मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। ओके, इट इज़ कोल्ड डेजर्ट, रेड प्लैनेट है लेकिन कोल्ड डेजर्ट है। इट्स एटमोसफियर इज़ टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन द सरफेस। इसमें ज़्यादा देर लिक्विड टेम्परेचर्स नहीं रह सकते। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हैव रिंग्स। जुपिटर में देखिए रिंग है, सैटर्न में देखिए रिंग है, नेपच्यून में भी रिंग है एंड यूरेनस में भी रिंग्स हैं। एंड यूरेनस में नहीं है, नेपच्यून में है, सॉरी, नहीं है यूरेनस में भी है, पर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। द रिंग्स अराउंड द जुपिटर आर वेरी फेंट एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। जुपिटर और यूरेनस के रिंग्स हमको नेकेड आई के बिना दिखाई नहीं दे सकते। द एटमोसफियर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम से इनका एटमोसफियर बना हुआ है। अदर देन दीज gases, Uranus has methane which gives blue tint to it। कभी कभी आपको KBC में कभी शायद क्वेश्चन पूछ ले या कभी आप कहीं पूछ ले, यूरेनस में मीथेन गैस है, इसीलिए वो ब्लू कलर का उसमें एक टिंट दिखता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू टिंट इन इट। एंड नेपच्यून इज़ अ सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ यूरेनस, यानी कि नेपच्यून एंड यूरेनस का बनावट सब कुछ लगभग सेम है। कंपोज प्राइमरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, इसीलिए वो दोनों देखिए काफ़ी कुछ सेम दिखाई देते हैं, अमोनिया एंड मीथेन जैसे, है ना। भाई 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 भाई, यूरेनस भाई एंड नेपच्यून भाई, दोनों सेम हैं। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ डन। ये बेटा आपका एक टाइम टेबल है जो थोड़ा सा डू यू नो है, मैं इसमें नहीं जाऊँगी, इट्स नॉट सो रिक्वायर्ड, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अर्थ पे। ना अर्थ इज़ नोन एज यूनिक प्लैनेट। यूनिक मीन्स खास, यूनिक मीन्स एक स्पेशल, यूनिक मीन्स जो किसी के पास नहीं है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में जो चीज़ें नहीं हैं वो अर्थ के पास है, इसीलिए अर्थ इज़ नोन एज, दैट्स वाई अर्थ इज़ नोन एज अ यूनिक प्लैनेट। लेकिन सबसे पहले अर्थ के बारे में हम जानकारी ले लें। अर्थ, व्हाट इज़ अर्थ? सो अर्थ इज़ ऑन विच वी okay is placed in the third position in order to distance from the sun. It ranks with, देखिए जब हम सोलर सिस्टम में बात करें तो वो थर्ड पोजीशन में है, और हम साइज में बात करें तो वो फिफ्थ पोजीशन में है, और वो सन के चारों तरफ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि बेटा सन उगता है ईस्ट में और अर्थ घूमता है वेस्ट से, उल्टा। फिर से बोलती हूँ, सन उगता है ईस्ट में और अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट।
अर्थ उल्टा घूमेगा, वेस्ट से शुरू करेगा और सन शुरू करता है कहाँ से, ईस्ट से, अर्थ शुरू करता है कहाँ से, वेस्ट से। सो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वेस्ट टू ईस्ट एंड अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अर्थ क्लास 5 में हम पढ़े हैं कि अर्थ एक 24 आवर्स में अपना एक चक्कर घूमता है और पूरे चक्कर सूरज को लगाने के लिए, पूरे अर्थ रिवोल्यूशन करने के लिए उसको 365 डेज लगते हैं। दिस वी हैव रेड इन क्लास क्या बोलते हैं उसको 5 में एंड मोर डिटेल विल रीड इन अदर चैप्टर्स। इतना ज़्यादा जानकारी हमको लेने की ज़रूरत नहीं है अभी हाँ फिलहाल। इन एंशिएंट टाइम्स इट इज़ बिलीव दैट द अर्थ इज़ अ फ्लैट बॉडी। ये मैंने आपको बताया था, याद है फर्डिनेंड मैगलन, वो पहले दुनिया गोल नहीं थी लेकिन फर्डिनेंड मैगलन अपने 5 क्रू के साथ 270 पीपल लोगों के साथ पूरे दुनिया की विश्व को घूमने गया था। तब उसको पता चला जहाँ से शुरू किया वहीं वापस आ गया, उसी से पता चला कि अर्थ इज़ राउंड। तो उससे पहले लोग अर्थ को फ्लैट बॉडी मानते थे, फ्लैट, और लोग बाहर नहीं जाते थे कि कहीं पे जाके अर्थ ख़त्म हो जाएगा और हम गिर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 5th सेंचुरी में सबसे पहले हमारे देश के वैज्ञानिक साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्टा, ये देखिए इंडियन साइंटिस्ट ने बिना अर्थ के चक्कर लगाए ही घर बैठे बैठे अपने मैथ्स और गणित से ये साबित कर दिया था कि अर्थ इज़ स्फेरिकल, जो कि फर्डिनेंड ने पूरी दुनिया को चक्कर लगा के साबित किया। सो जो मैंने आपको बताया था, जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स की बात करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। सो इन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि अर्थ इज़ स्फेरिकल। अभी आपको मैंने बताया ना स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन्स बॉल शेप। ओके, नाउ the photograph the earth taken from the spherical shape, the earth bulges slightly to the equator। ये देखिए आपको एक बॉल शेप में दिखेगा। बल्ज मतलब ये देखिए, ये आपको मैं बता रही हूँ, बल्ज मीन्स ये इसको बोलते हैं बल्ज, ये है बल्ज, इधर से बल्ज होता है, इधर से बल्ज होता है, निकला हुआ है ना, तो इसी को बल्जेस बोलते हैं ना। सो इसको बल्ज करके क्या हुआ है, अर्थ एक स्फेरिकल शेप ले लिया है। ओके, एंड वो पोल्स की तरफ थोड़ा सा फ्लैट है। इधर देखिए, बहुत ज़्यादा आप ध्यान से देखेंगे तो इधर थोड़ा सा पोल्स की तरफ यहाँ पे फ्लैटिश है। ओके, और इस तरह से हमारा अर्थ बना हुआ है, बनावट उसकी। ओके, नाउ लेट्स लर्न फेवरेबल कंडीशन विच सपोर्ट लाइफ। अर्थ में ही क्यों लोग रहते हैं, अर्थ में ही क्यों पेड़ पक्षी पंछी ये सब रहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली सी दिस इज़ द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, वाई अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अगर आप स्कूल में होते तो मैं आपको अंडरलाइन करवाती, फर्स्ट द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ, थोड़ा इसको छोटा करूँ मैं पर फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। First the earth receives moderate heat and light from the sun. This is the first point. Moderate heat and light हमको मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। Sufficient light होती है कि हमारे लिए अंधेरा ना हो, और sufficient गर्मी होती है ताकि हम पेड़ पौधे वगैरह उगा सकें, और ये हमारे अर्थ का सबसे बेस्ट पॉइंट है सब लाइफ सपोर्ट करने के लिए। ओके, एंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट, 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ सी अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। ये अर्थ में वाटर है, आपको देखिए समुद्र, नदी, वाटर इज़ फुल ऑफ वाटर, सो दैट्स वाई life is possible on earth. No water, no life, you know that. Thirdly, the earth has envelope of air around it. Envelope of air, earth के चारों तरफ एक हवा है, वो हवा इस धरती को सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट करने में बहुत मदद करती है। उस हवा में ऑक्सीजन है, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पेड़ों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है और हम इंसानों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। सो इस तरह से अर्थ की 3 बातें होती हैं, दैट इज़ फर्स्टली, सेकेंडली
And thirdly, firstly, moderate heat and light. Secondly, 2/3 of the water is covered with water. Thirdly, full of atmosphere या full of air. That's why Earth is known as a unique planet. Now moving on to यहाँ पे ये कुछ ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होगी. द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द रेस्पेक्टिव प्लैनेट, यानी कि देखिए प्लैनेट हमारी धरती है, धरती के चारों ओर, हमारी धरती के चारों ओर या हर प्लैनेट के चारों ओर जो घूमते रहते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट. ओके, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती. सी है पहली बात, ये प्लैनेट के चारों तरफ हर कोई अपने प्लैनेट के चारों ओर घूमता रहता है और प्लैनेट से ही हीट एंड लाइट लेते हैं. यानी कि सन जो हीट हमारी धरती को देता है, उसी हीट को हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट यानी कि उसकी परछाई जाके जब पड़ती है तो वो सैटेलाइट को चमकाती है. ओके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इज़ मून. सो मोर देन, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जिनके बहुत सारे मोर देन वन सैटेलाइट होते हैं, लेकिन अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ मून. ओके, सी हियर, they reflect the light that they receive from the sun. Each planet has more than one satellite except Mercury and Venus. Mercury and Venus के पास सैटेलाइट है ही नहीं. ये क्वेश्चन भी KBC में पूछा गया था. मरकुरी एंड वीनस के पास सैटेलाइट ही नहीं है. अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, मून के सैटर्न के पास 53 सैटेलाइट्स हैं. यहाँ आ गए हम लोग, ये देखिए. एंड 50 सैटर्न, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 13, मार्स के पास नेपच्यून हैज़ 13, मार्स हैज़ 2. सो इस तरह से सबके पास कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स है. खाली एक मरकुरी एंड वीनस है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है. देखिए यहाँ पे भी फ़ोटोज़ हैं. ये सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से दिया हुआ है. इस फ़ोटोज़ को एक्सटेंड करके मैं आपको दिखा रही हूँ. सबकी एक सैटेलाइट्स हैं. ओके, नाउ कमिंग टू मून. हमारे पड़ोसी हैं मून, तो उनके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो उससे पहले एक सैटेलाइट है. ओके, सो मून इज़ अ क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी. सबसे करीब हमारे मून है. ओके, सबसे पहले हमारे सबसे क्लोज celestial body is moon to the earth. The distance from the earth is about 3,84,000 kilometers. ज़्यादा नहीं, बहुत पास में है. The moon reflects lights which receives from the sun. हम जितना सन हम मतलब अर्थ जितनी सन से वो लाइट लेता है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करता है मून को, इसलिए मून चमकता है. The moon rotates on its axis, revolves around the earth. The period of rotation of moon on its axis and is known as rotation and revolution. जैसा होता है वैसे ही. लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने आपको वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ का रोटेशन और मून का रोटेशन सेम होता है, रिवोल्यूशन. इस वजह से हम एक ही हिस्सा मून का देख पाते हैं. उसका वीडियो मैंने बहुत अच्छे से भेज दिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से आप नेट पे यूट्यूब में जाके देख सकते हैं. ड्यू टू द सेम पीरियड ऑफ द बोथ ऑफ द मूवमेंट वी सी ओनली वन साइड. हम फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ. ड्यू टू द सेम पीरियड ऑफ ड्यू टू द सेम पीरियड क्यों नहीं चल रहा है ब्रश. हाँ, ड्यू टू द सेम पीरियड we see only one side of the moon is always visible. यानी कि हमको सिर्फ वन साइड ही दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है?
क्योंकि हमारा जो मून का और हमारे जो अर्थ का वो सेम पीरियड ऑफ बोथ द मूवमेंट्स, मतलब रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों का लगभग सेम ही है, इसी वजह से हमको एक साथ दिखा देगा। मून हैज़ बैरन लैंड, मून में खद्दड़ बैरन लैंड है, मतलब बंजर ज़मीन है। सैटेलाइट्स और वो सबसे रॉकी है और रॉकी स्पेस है, चंक्स है, और बहुत सारे मून में पानी नहीं है, एयर नहीं है, इसीलिए मून में कोई जा नहीं पाता और वहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ होती है। द मून डज़ नॉट हैव एटमॉस्फेयर, सबसे बड़ी बात, अराउंड इट। द लाइट ऑफ द सन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। रात को मून एकदम ठंडा हो जाता है, -184 डिग्री चला जाता है, और दिन में 214 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, यानी कि मतलब 40 डिग्री। सोचो हमारे इंडिया में या देश में जब हम 45 और 50 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जब पहुँचते हैं तो बिना एसी के नहीं रह सकते। तो आप सोचिए 214 डिग्री में तो हम पापड़ बन जाएंगे वहाँ जाके, पापड़ नहीं कीमा बन जाएगा, कीमा नहीं हड्डियों का सुरमा बन जाएगा, है ना बेटा। नाउ कम टू फेजेस ऑफ मून। फेजेस मैंने आपको भी इसका एक वीडियो भेजा था कि मून को आपके वो कहा ना कि एक पोएम है कि मून जाके अपनी माँ से बोलता है कि मेरे लिए एक झबला बना दो, तो माँ पूछती है बेटा किस नाप का बनाऊँ, कभी तो तू एकदम गोल हो जाता है, कभी तू एकदम छोटा हो जाता है, कभी तू आधा हो जाता है, कभी तू मोटा हो जाता है, तो बता किस नाप का बनाऊँ। तो वही है फेसेस ऑफ मून। सो यहाँ पे देखिए वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन साइड ऑफ द मून गेट्स illuminated बाय द सन। मैंने आपको बताया था मून का एक ही हिस्सा होता है विच इज़ विजिबल टू अस। द पोजिशन ऑफ द मून इज़ इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। हर दिन मून अपना चेंज करता रहता है। तो जो सबसे पहली बात यह है कि जिस दिन मून निकलता ही नहीं, ओके, उस दिन बोलते हैं न्यू मून। ये देखिए ये है न्यू मून। ओके, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, बस ऐसे ही शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। फिर जिस दिन मून का फुल शेप आ जाता है उस दिन पूर्णिमा होती है। ये देखिए ये पूर्णिमा, ये इधर के और इधर के शेप्स लेते रहता है। पहले मून, हाँ मून देखिए ऐसे, फिर ये पहला दिन, ये फिर हाफ डे, फिर ऐसे 15 दिन तक। तो पता है आपको 15 दिन तक मून की ये शेप, यहाँ तक शेप आती है। फिर 15 इसको एक तरफ बोलते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरी तरफ बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ऐसा कैलेंडरों में लिखा जाता है। इन्हीं कैलेंडरों में इस शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पे तिथियां निर्धारित होती हैं, और इन्हीं के निर्धारित तिथियों के हिसाब से हमारे फेस्टिवल्स और फंक्शंस मनाए जाते हैं। तिथियों के हिसाब से जो हम बोलते हैं ना कि बेटा आज पूर्णिमा है तो आज पूर्णिमा में क्या होता है, होली, आज अमावस्या है तो आज दिवाली। तो इसी पूर्णिमा लूनार कैलेंडर बोलते हैं। इस लूनार कैलेंडर इस फेजेस ऑफ मून की बदौलत बनाया जाता है। तो 15 डेज़ इधर और 15 डेज़ उधर। और आप इस फेजेस ऑफ मून का वीडियो मैंने आपको भेज दिया था डिटेल जानकारी के लिए। ये देखिए ये एक फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है जो मून पे गया था, एंड ही इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड इसने पहली बार मून पे कदम रखा। एंड सेकंड आदमी था एडविन एल्ड्रिन जो मून पे कदम रखा। और ये भी हमेशा पूछा जाता है केबीसी में कि सेकंड व्यक्ति कौन था और किस गाड़ी में गए थे, वो जो कौन सा उसमें गए थे, तो लूनार मॉडल अपोलो 11 में गए थे। ओके बेटा, सो ये है आपके मून के बारे में। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन। नाउ कम टू सेलेस्टियल अदर बॉडीज़। इसके अलावा हमने पढ़ा सन के बारे में, मून के बारे में, जो जब बाकी प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में डिटेलली। उसके बाद मैंने आपको बताया था, याद है, कुछ टुकड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े जिसको हम अचार बोलते हैं, और उससे छोटे छोटे टुकड़ों को हम मीट्रॉइड्स बोलते हैं। तो ये अचार के बारे में पढ़ते हैं। ये है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आवर सन। मतलब सन के चारों तरफ जो घूमते रहते हैं और रॉकी होते हैं और वो सन की चारों तरफ घूमते रहते हैं। दे कैन बी फ्यू वाइड टू सेवरल
100 miles. Okay बेटा. And most asteroids orbit us around our sun. A star is a reason. सबसे ज़्यादा जुपिटर एंड मार्स के बीच में हमको सी ईयर मार्स एंड जुपिटर, बेटा ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में सारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इस रीजन को बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट. ओके, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाया जाता है? स्पेशली मार्स एंड जुपिटर के बीच में. एंड ये एस्ट्रॉइड बेल्ट वो टुकड़े होते हैं जो सोलार सिस्टम बनाते वक्त छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे. ओके, देन कम्स टू मीट्रॉइड्स. मीट्रॉइड्स आर वेरी लिटिल चंक्स. जो मतलब जो सोलार सिस्टम को जो नेबुला का टुकड़ा हो रहा था तो उसके जो बारीक बारीक टुकड़े बने थे, लिटिल चंक्स मतलब बहुत बारीक टुकड़े बने थे, वो बन गए मीट्रॉइड्स. ओके, और दीज बिकम अ मीट्रॉइड और सूथिंग स्टार. इनको सूथिंग स्टार्स भी बोलते हैं. बेटा कभी कभी आपने सुना होगा टीवी में, पिक्चरों में, वो देखो टूटता तारा, तो ये वही टूटते तारे हैं और ये ज़मीन में अक्सर गिरते रहते हैं. एंड विद अ लॉन्ग टेल. जब वो गिरते हैं तो उनके पीछे एक बड़ी सी टेल दिखाई देती है और एक हेड सा दिखाई देता है, और उसी हेड और टेल को देखते हुए बोलते हैं कि टूटता तारा गिरता है. कभी कोई बोलता है टूटता तारा शुभ होता है, कोई बोलता नहीं होता है. उसके बाद आता है केटर. ये केटर क्या होता है बेटा कि जब कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती पे आकर जब टकराता है तो उसके बड़ा सा छेद कर देता है, और धरती पे ऐसा ही एक छेद कर दिया था. ऐसा ही एक छेद को क्रेटर बोलते हैं. क्रेटर इज़ अ डिप्रेशन विच मे बी फॉर्म्ड अदर बाय फॉलिंग ऑफ लार्ज मीट्रॉइड ऑन द अर्थ. मतलब एक बड़ा सा मीट्रॉइड जब आके धरती पे टकराता है और कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शन कर देता है, तो ऐसा ही एक बड़ा सा धरती पे आके गिरा था नॉर्थ एरिज़ोना यूएसए में, और बड़ा सा क्रेटर गिरा था. और ये सच्चाई, आज भी वो बड़ा सा गड्ढा वहाँ पे है, और इस बड़े से गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं. ठीक है, आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी. देन कम्स टू कॉमेट. कॉमेट इज़ अ स्मॉल बॉडी विद अ head and a long tail. They are made up of dust and frozen gas. They appear in the sky after a big period. मतलब ये 76 यहाँ पे देखिए, ये 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है. ए कॉमेट नोन एज हेलिस कॉमेट. अच्छा एक बात और मैं बता देती हूँ बेटा, जो सबसे पहले अपना कॉमेट देख लेता है उसके नाम से कॉमेट हो जाता है. तो इससे यहाँ पे हेली ने सबसे पहले कॉमेट निकाला था तो ये हेलिस कॉमेट बन जाएगा. उसी तरह अगर आपने सबसे पहले देख लिया, आपने इस कॉमेट को डिस्कवर कर लिया तो आपके नाम से, अगर जोशना है तो जोशनास कॉमेट, अगर वो चारू है तो चारूस कॉमेट. तो इस तरह से आपके नाम से कॉमेट बन जाएंगे विच अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर 676 ईयर्स ऑफ इंटरवल्स. मतलब हर 76 ईयर्स बाद ये निकला. तो लास्ट टाइम ये कब बना था बेटा? लास्ट टाइम ये सबसे लास्ट में मार्च 25, 1996 में. इसमें 76 डेज ईयर्स ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कॉमेट कब दिखाई देगा. बेटा ये कीवर्ड्स हैं जो आप कॉपी में लिख सकते हैं, और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स पहले ही भेज दिए थे, शायद आप सबने लिख लिया होगा. अगर नहीं लिखा तो आप मेरे को भेज सकते हैं उसका कि मैडम फिर से भेज दो, तो मैं फिर से भेज दूँगी. उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे ये आपके पास जो भी कॉपी फ़िलहाल अवेलेबल है उसमें आप ये कर लीजिए, बाद में फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं. चलिए अब हम बुक्स ये कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं. व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. तो स्टार्स को जब हम, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत ह्यूज बिलियंस ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी बोलते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हॉटेस्ट प्लैनेट. मैंने आपको बताया था वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, याद है, क्योंकि उसके पास ना तो थिक एटमॉस्फेयर है और वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं. और सबसे विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट, तो मैंने लास्ट में बोला था SUN, N यानी नेपच्यून, तो नेपच्यून होगा
और विच प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। मैंने याद है मार्स एंड वीनस बोला था, याद है? तो इसका आंसर है मार्स, क्योंकि यहाँ पे वीनस नहीं है। नहीं, वीनस भी है, नेपच्यून भी है और अर्थ भी है। द प्लैनेट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसका मार्स आंसर है, वीनस नहीं है। एक मिनट में और इसको आपको क्लियर करके थोड़ी देर में बताती हूँ। उससे पहले ये वाला कर लेते हैं। विच प्लैनेट ऑफ विच टू प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट, हाँ वो मार्स एंड वीनस है। तो इसमें ये यहाँ पे विच प्लैनेट्स हैज़ 2 सैटेलाइट्स, तो 2 सैटेलाइट्स किसके पास है बेटा? वीनस के पास। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूज है बेटा, मैं चेक कर लेते हैं हम लोग अभी तुरंत फटाफट। ये देखिए यहाँ मिल जाएगा। मरकुरी इज़ द मोस्ट थिन एंड द डेज आर हॉट। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये आपको मैंने बताया था पहले ही। एंड यहाँ पे शायद दिया है। सैटेलाइट्स यहाँ मिलेंगे बेटा, सैटेलाइट्स यहाँ मिलेंगे कि देखिए मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट्स एंड मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं, तो उसका आंसर मार्स होगा बेटा। विच हैज़ 2 सैटेलाइट्स, मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट्स। ईच प्लैनेट हैज़ मोर देन 1 सैटेलाइट एक्सेप्ट मरकुरी एंड वीनस। मतलब मरकुरी एंड वीनस के पास एक सैटेलाइट है, बाकी सबके पास मोर देन 1 सैटेलाइट है। तो यहाँ पे द प्लैनेट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, so which has 2 the planet which has 2 satellites, बेटा मैंने अभी आपको बताया था ना कि मार्स। इसका आंसर मैं आपको फिर से बाद में दूंगी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं द वास्ट लिमिटलेस स्पेस, यानी कि द सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड यूनिवर्स बेटा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी इज मेजर्ड in unit is called light year. Dash is also indicates a non-direction, that is North Pole. Dhruv Tara, all the planets of our solar system revolve around the sun in their fixed part called orbit beta. Dash is the third nearest planet to the sun, that is Earth. Okay बेटा, यहाँ आते हैं। यहाँ पे ग्रेट बियर बेटा, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन, ये रहा कॉन्स्टलेशन होगा। सोलार सिस्टम, स्टार और सोलार सिस्टम सन है। हेड ऑफ सोलार सिस्टम सन, तो फर्स्ट इज कॉन्स्टलेशन, हेड ऑफ स्टार सोलार सिस्टम सन। जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट इज नेबुला and shape of the earth spherical, ये वाला spherical, and ये क्या है बेटा? रेड प्लैनेट, दैट इज़ मार्स। हो गया। और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैं आपको पोस्ट कर दूँगी।
दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट यू कैन आस्क मी. वो 2 क्वेश्चन जो बच गए हैं मैं आपको थोड़ी देर में SMS के थ्रू सेंड कर दूँगी.